بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور بتائیں آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف کا صنعتکاروں کے ساتھ ملاقات میں بڑا اعلان۔ انڈسٹری کے لیے گیس فراہمی کا فارمولہ تبدیل کر دیا۔ 50% LNG، 50% سسٹم گیس فراہم کی جائے گی۔ منسٹری آف پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے سیلز ٹیکس ری فنڈز جلد بحال کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ صنعتکاروں کا خیر مقدم سابق چیئرمین PHM کاشف ضیاء کہتے ہیں گیس سستی ملے گی تو ایکسپورٹ ترقی کرے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا صنعتکاروں کے ساتھ ملاقات میں بڑا اعلان۔ انڈسٹری کے لیے گیس فراہمی کا فارمولہ تبدیل کر دیا۔ 50% LNG، 50% سسٹم گیس فراہم کی جائے گی۔ منسٹری آف پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم نے سیلز ٹیکس ری فنڈز جلد بحال کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ صنعتکاروں کا خیر مقدم سابق چیئرمین PHM کاشف ضیاء کہتے ہیں گیس سستی ملے گی تو ایکسپورٹ ترقی کرے گی۔ فیصل آباد میں ستیانہ بائی پاس کے سنگ بنیاد کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ستیانہ بائی پاس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا منصوبے سے فیصل آباد کی عوام کو بے پناہ سہولت ملے گی۔ سابقہ حکومت نے 4 سالوں میں کوئی کام نہیں کیا، صرف عوام میں زہر گھولا۔ آج فیصل آباد میں کافی عرصے بعد حاضر ہوا ہوں، خوشی ہوئی فیصل آباد کی عوام کا جذبہ جواں ہے۔ آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے نون لیگ کو کامیاب بنانا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد میں ستیانہ بائی پاس کے سنگ بنیاد کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ستیانہ بائی پاس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا منصوبے سے فیصل آباد کے عوام کو بے پناہ سہولت ملے گی۔ سابق حکومت نے 4 سالوں میں کوئی کام نہیں کیا، صرف عوام میں زہر گھولا۔ آج فیصل آباد میں کافی عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں، خوشی ہوئی فیصل آباد کے عوام کا جذبہ جواں ہے۔ آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے نون لیگ کو کامیاب بنانا ہے۔ ڈوئلائزیشن ہے فیصل آباد بائی پاس موٹر وے تک، اس کے لیے جو 10 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے، انشاءاللہ اس سے فیصل آباد کے عوام کو باہر جانے کے لیے اور فیصل آباد اندر آنے کے لیے بے پناہ سہولت مہیا ہوگی۔ مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے جو منصوبے رانا ثناء اللہ صاحب نے گنوائے، پچھلی حکومت نے ان کے اوپر ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کیا۔ 4 سال دن رات انہوں نے پاکستان کے معاشرے میں زہر گھولتے رہے اور بے تکے جن کا کوئی وجود نہیں تھا وہ الزامات، بے ڈھنگے بھونڈے الزامات لگاتے رہے۔ لیکن عوامی خدمت کا ریکارڈ منگوا لیں فیصل آباد کے نوجوان ساتھیوں اور میرے بھائیوں، تو آپ کو ان کا ریکارڈ اس طرح ملے گا کہ جس طرح کوئی دشمن کسی دشمن کے ساتھ کرتا ہے۔ 100 ارب روپے ہم نے وفاق سے پورے پاکستان میں جہاں جہاں سیلاب نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا تھا وہاں پر ہم نے امداد پہنچوائی۔ صوبوں نے اپنے تائیں بے شمار خدمات کی، باہر سے امداد آئی، لیکن اس شخص نے پاکستان کا IMF سے معاہدہ توڑنے کے لیے جو سازش کی کہ 2 صوبوں میں اپنے وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے IMF کے لیے خط جاری نہیں کرنا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس سے بڑی ملک کے ساتھ سازش کیا ہو سکتی ہے؟ فیصل آباد میں ستیانہ بائی پاس کے سنگ بنیاد کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ستیانہ بائی پاس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے تقریب سے خطاب میں کہا فتنے نے گزشتہ 4 سال اس ملک میں کوئی کام نہیں کیا۔ 2018 کا الیکشن چرایا گیا، فتنے کو مسلط کیا گیا، ملک کی بربادی کی گئی، ہمارے خلاف سازش ہوئی، نواز شریف کو نااہل کیا گیا۔ فیصل آباد میں کوئی کام ایسا نہیں جہاں شہباز شریف کی تختی نہ لگی ہوئے۔ ایکسپریس وے، فلائی اوور، سڑکوں کا جال، تمام کام شہباز شریف نے کیے۔ وزیر اعظم جب وزیر اعلیٰ تھے تو پنجاب کے خادم بن کر خدمت کی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب بات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب آج یہاں پہ 2 منصوبوں کے افتتاح کے لیے تشریف لائے ہیں، جن کی لاگت
10 अरब रुपए है। एक सत्याना रोड जो फैसलाबाद को लिंक करेगी लाहौर मुल्तान मोटरवे से, और आपका लाहौर का सफ़र जो इस वक्त 2-2.25 घंटे का है वो कम होके 1 घंटे पे आ जाएगा। दूसरा मंसूबा जो रिंग रोड है फैसलाबाद की वो है, और जो अब मुकम्मल होने के करीब है इंशाअल्लाह ताला। फैसलाबाद वालों, फैसलाबाद में आज आप जंग में तेरेमू बैराज पर पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसिक रवां दवा। जंग के मुकाम पर सैलाबी पानी के डेरे, बस्तियों का जमीनी राबिता मुनक़ता। सैलाब के सबब आमदोरफ्त महदूद हो गई है, मकीन मुश्किलात से दो चार है। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। बैराज पर पानी की सतह नीचे होने के बाद बहाव 1,11,000 क्यूसेक पर आ गया है। सैलाबी पानी के बायस देही बस्तियों का झंग से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। सैलाब के सबब मकीनों की आमदोरफ्त महदूद हो गई है। सैलाब मुतासरीन की आमदोरफ्त के लिए ज़िली इंतजामिया ने 22 ट्रॉली ट्रैक्टर को मुख्तलिफ रूट्स पर लगा दिया है। वज़ीर आला की जानिब से दी गई मुफ्त सर्विस पर सैलाब मुतासरीन खुश हैं। मलावाली बस्ती मेरिया वाला ये सारे रस्ते जो है ना बंद है। लांचा ले आए बदन ये जरा अपने बदन बंदे किन्ने दिनों तक पानी तकरीबन सुक जाएगा की उम्मीद है? किन्ने दिनों तक अगर मजीद पानी नहीं आता तो पानी सुक जाएगा? ऐसा सुक जैसी बस महीना डेढ़ तक तो सुक ही जाना। आइंदा रोज तक चिन्योर से पानी का बड़ा रेला फिर से झंग पहुंच सकता है, जिससे सैलाबी सूरत हाल में तसलसल आएगा। कैमरामैन अरबाब और अली के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। चिन्योर दरिया चनाब में फिर से पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी 1 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। किसान और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से हजारों मकीन मुश्किलात से दो चार। निचले दर्जे के सैलाब के पेश नजर दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। मकीन नकल मकानी पर मजबूर, फसलें मुतासर हो गईं, जबकि गुज़श्ता रोज पानी की सतह कम हुई और 70,000 क्यूसिक रह गई। लेकिन आज फिर पानी मजीद बढ़ा और 1 लाख क्यूसिक से तजावज कर गया। सैलाब के बायस मौजा बाबू राय, धूसरी, ठट्ठा दियोड़ा, ठट्ठा रोशन, ठट्ठा महमूद का और मैना कोट समेत बेशतर जगहों पर सैलाबी पानी जमा है। हजारों मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और जानवरों के हमरा नकल मकानी कर रहे हैं। मुंजी नूं फायदा है ते मकई सब्जी ते चारे नूं नुकसान है। साडे सारा खराब हो गए। कल शहर दा भी रास्ता बंद हो गया, इन्ना पानी है। बेशतर जगहों पर सैकड़ों एकड़ पर खड़ी मुख्तलिफ फसलें मुतासर हो चुकी हैं। किसान कहते हैं मकई की तैयार फसल तबाह हो गई। काश्तकारों ने फसलों में पानी जमा होने से फसलें गलने सड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। काश्तकारों ने मजीद कहा सैलाब के बायस पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं बचा, जबकि मौजा बाबू राय का मुनक़ते जमीनी रास्ता बहाल होना शुरू हो गया है। ताहम पानी में अब मजीद इजाफा हो रहा है। एक बार फिर बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योर। भवाना में दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। मौजा साहमिल के करीब जमीनी कटाव में तेजी आ गई। राबिता सड़क दरियाबुर्द हो गई। इसी पर देखते हैं फखर दीवान भुट्टा की ये रिपोर्ट। भवाना में दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाद सैलाबी इलाकों को मिलाने वाली दीगर राब्ता सड़कों में गड्ढे और शगाब पड़ गए। उसके साथ पुलें भी दरिया बुर्द हो गए। अहले इलाका का राब्ता मुनक़ता हो गया। अड्डा जामेबाद और शहर आने में मुश्किलात का सामना। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से रेस्क्यू इमदादी कैंप 12 किलोमीटर दूर लगाया गया है। अहले इलाका गैबी इमदाद के मुंतजिर है। सड़क आ रही है कोपता शामल, ये सारी टुट चुकी है। इन्हू शगाब पै गया है बहुत बड़ा। ये जो पानी निकल रहा है ये 10 तो 12 मवादात नूं मुतासर कर रहा है। ये फसलां भी सारियां बर्बाद हो गई, मक्की तेल वगैरह बाजरा वो सारा चारा भी बर्बाद हो गया और फसलां भी बर्बाद हो गई। जेडे लिंक रोड ये शार्टकट रस्ते होंगे मेन रोड तो वो भी सारे तकरीबन बर्बाद हो गए हैं। इस हवाले से अहले इलाका का कहना था कि राब्ता सड़क तबाह होने से पानी दर्जनों देहातों और आबादियों में दाखिल हो गया है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। मकई, चारा, तेल, धान की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। जानवर भूखे मर रहे हैं। उनका कहना था कि राब्ता सड़कें तबाह होने से अहले इलाका को नकल मकानी में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया रेस्क्यू की तरफ से इमदादी कैंप 12 किलोमीटर दूर लगाया गया, जिसका फायदा नहीं है। उनका मजीद कहना था कि सैलाबी इलाकों में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है। लोग बीमार होने लगे हैं, जबकि सैलाबी पानी से दीगर वबाई अमराज भी फूटने का खदशा है। अहले इलाका का मुतालबा है
ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਯੱਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਦਵਿਆਤ ਮੁਯੱਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਹਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ बहाल रहे। अहले इलाका ने मुतालबा किया इंतजामिया रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करे, खुराक व अद्वियात फराम की जाए, कटाव मुतासरीन घर बनाने के लिए मुतबादिल जमीन फराम की जाए। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 बुआना। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का हंगामी इजलास सैलाब की ताज़ा सूरत हाल और भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने जाने के हवाले से तैयारियों और हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तमाम कमिश्नर्स को हंगामी बुनियादों पर हिफाजती इंतजाम, महकमा आबपाशी, PDMA, रेस्क्यू 1112 और इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म, दरियाओं के बेड के अंदर मौजूद गाँव के लोगों की हिफाजत के लिए तमाम पेश किए इक़दाम को हतमी शक्ल दी जाए। जंग में सब्जी फरोशों की खुद साख्ता महंगाई, मुहर्रम और हराम में सब्जी और फलों की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। प्याज, आलू, लीमू, अदरक और लहसुन के रेट आसमानों पर पहुंच गए। जंग में सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता महंगाई करके गरीबों का जीना मुहाल कर दिया। मुहर्रम और हराम में सब्जी और फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। प्याज, आलू, लीमू, अदरक और लहसुन की कीमत कम न हो सकी। आलू 110 रुपए, टमाटर 80 रुपए और प्याज 35 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। लीमू 100 रुपए, मटर 250 रुपए, करेला 80 रुपए में फरोख्त होने लगे। भिंडी 140 रुपए, शिमला 100 रुपए, गोभी 150 रुपए और खीरा 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना था कि सब्जियां जंग की लोकल काश्त हैं, उनका इस कदर महंगा होना समझ से बाहर है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। महंगाई का सुनामी, इतवार बाजार में रिलीफ देने में नाकाम। सब्जियों के महंगे दाम फरोख्त पर अवाम परेशान। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर की कीमतें कम ना हो सकी। मार्केट की निस्बत इतवार बाजार में भी कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी। मजीद जानते हैं मरियम रजा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के इतवार बाजारों में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियों के महंगे दामों फरोख्त पर शहरी परेशान नजर आते हैं। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर की कीमतें इतवार बाजारों में भी कम न हो सकी। शहरियों का कहना था कि मार्केट की निस्बत यहाँ भी कीमत में इजाफा हो गया है। महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। रिलीफ तो नहीं मिलता, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी मिल जाती हैं। यहाँ पे हमें दूसरे आम जाना नहीं पड़ता, मार्ट जरा दूर पड़ जाते हैं, वहाँ भी सब मिल जाता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं तो वो ले लेते। शहरियों का कहना था कि इतवार बाजार में तमाम अशिया एक जगह मिल जाती हैं, इसीलिए यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं, वगरना कीमत में कोई खास फर्क नहीं है। सिर्फ प्याज ही नरम है, बाकी 200 रुपये किलो, 250 रुपये को गोभी दे रहे हैं, तो उसके बाद टमाटर 120, 30, 150 रुपये दे रहे हैं, जो 40 रुपये कल तक मिलता रहा। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही है, बंदे बाजार घूम के वापस जा रहे हैं। फैसलाबाद में लगने वाले इतवार बाजार शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। शहरियों ने इंतजामिया से तवज्जो देने और कीमत पर काबू पाने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकारी महकमों में राबतों का फुकदान, शहरी परेशान। महकमा एक्साइज डाकखानों में जमा कराए गए गाड़ियों के टोकन टैक्सेस मानने से इनकारी। डाकखानों में अदायगी के बावजूद गाड़ियां डिफॉल्टर्स की फहरिस्त में मौजूद हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और महकमा डाक के माबैन राब्तों का फुकदान गाड़ी मालिकान पर भारी पड़ने लगा। डाकखानों में जमा कराए गए गाड़ियों के टोकन टैक्सेस को महकमा एक्साइज तस्लीम नहीं करता। डाकखानों में अदायगी के बावजूद गाड़ियां डिफॉल्टर्स की फहरिस्त में मौजूद हैं। टैक्स अदायगी के बावजूद नादहिंदगान की फहरिस्त में शामिल शहरियों को परेशानी दरपेश है। दूसरी जानिब एक्साइज हुक्काम का कहना था कि डाकखानों में अदाशुदा टोकन टैक्स की पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब से तस्दीक की जाती है, ताहम तस्दीकी अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। सैकड़ों केसेस की फाइलें तस्दीक के लिए सूबाई पोस्ट मास्टर दफ्तर भिजवाई गईं, जो ताहाल मंजूरी की मुंतजिर हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब से तस्दीक के बाद ही टोकन टैक्स अदायगी कबूल की जा सकती है। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत। 20,000 नई रजिस्टर्ड होने वाली और मलकियत तब्दील कराने वाली गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड ज़ेरे इल्तिवा। स्मार्ट कार्ड न मिलने से मुतालिका शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। व्हीकल्स मालिकान रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड्स के हसूल के लिए एक्साइज दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब एक्साइज हुकाम के मुताबिक स्मार्ट कार्ड सूबाई हेडक्वार्टर जारी करता है। हेडक्वार्टर से कार्ड मिलने पर शहरियों को भिजवाए जाएंगे।
ससुरालियों का मुबैना तशद्दुद, खातून जिंदगी की बाजी हार गई। ससुरालियों की खुफिया तौर पर मकतूला की तदफीन की कोशिश। मकतूला के वालिद की मुद्दत में थाना बटाला में मुकदमा दर्ज। मकतूला का खावंद, सुसर और सास मुकदमा में मुलजिम नामजद किए गए। फैसलाबाद में थाना बटाला कॉलोनी के इलाका में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से 2 बच्चों की मां जाँ बहक हो गई। ससुरालियों ने खुफिया तौर पर मकतूला की तदफीन करने की कोशिश की। मकतूला के वालिद शहजाद ने बेटी की मौत का इल्म होने पर पुलिस को इतला दी। तदफीन के दौरान बटाला कॉलोनी पुलिस मौका पर पहुंच गई। मकतूल की लाश तहवील में लेकर शोबा पोस्टमार्टम मुंतकिल कर दी। मकतूला चंदा बीबी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। चंदा बीबी के वालिद शहजाद की मदय्यत में खावंद वारस, सुसर शफीक और सास रजीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूला के वालिद का कहना था, ससुराली मेरी बेटी को अक्सर तशद्दुद करके घर से निकाल देते थे। बेटी को तशद्दुद करके मारा गया। एक अजनबी ने मैंने फोन किया, कहने भी तेरी बच्ची मर गई। मेरे पैरों थले जमीन चक्कर खा के डिग पे। मैं सामने बंदे ने उठाया, थाने रिपोर्ट करवाई। 2:30 आने तो पहले इन्होंने नवा तो आ गए, उन्होंने कफन भी पवाता है। वो लड़का जड़ा दमाद सीगा, उसके बाप से, उसकी मां से और एक डॉक्टर है शबीर, उसके साथ। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बटाला कॉलोनी अकमल जमाल शाह का कहना था, पुलिस ने इतला मौसूल होने पर लाश फौरी तौर पर शोबा पोस्टमार्टम मुंतकिल की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में मेरठ पर तफ्तीश होगी। पुलिस को उसके वालिद ने इतला दी। पुलिस ने फौरन जाए वकुआ पर रिपोर्ट की और हालात वाकयात और जो एप्लीकेशन है उससे हासिल करके फौरी अपनी कार्रवाई करते हुए FIR लॉन्च कर दी है। मेरठ पे 100% मेरिट पे तफ्तीश जारी है। जो भी हालात होंगे उसके मुताबिक जो है ना मुकदमा को जो है ना मेरिट पे यकसू किया जाएगा। पुलिस ने मुकदमा में नामजद ससुरालियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से फेस्को का अहम फैसला। फेस्को ने तमाम सर्कल्स को 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को लोड शेयरिंग न करने की हिदायत जारी कर दी है। तमाम फीडर्स को लोड शेयरिंग फ्री करार दे दिया गया है। तमाम ऑपरेशन स्टाफ को मुहर्रम उल हराम में मुतहरिक रहने की हिदायत जारी। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है, मुहर्रम उल हराम में खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सुस्ती बरतने पर अमला के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑपरेशन स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी के फराइज सरअंजाम देगा। जंग पुलिस का मुहर्रम के इंतजामात के हवाले से इजलास। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी, DPO मलिक तारिक महबूब ने सरबराही की। जिला भर के DSPs और SHOs की इजलास में शिरकत। मुहर्रम की ड्यूटियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। देखते हैं इस हवाले से अवैस खान की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी और DPO मलिक तारिक महबूब की ज़ेर सरबराही मुहर्रम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में जिला भर के DSPs और SHOs और ड्यूटी अफसरान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने मुहर्रम में हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी का कहना था कि ज़िले इंतजामिया मुहर्रम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पूरी तरह सरगर्म अमल है। अज़ादारान को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। तो रूट्स हमने सारे DP साहब ने मैंने इकट्ठे विजिट्स कर लिए थे। इसमें आप लाइट्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है, क्लीननेस हो सकती है। आज का मीटिंग का मकसद भी था कि और मुहर्रम हराम का जो पूरा एक पहला अशरा है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन बड़े पुरसकून तरीके से गुजरे। जो आखिरी वीक है हम इसमें पुरअज़म हैं और पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ, मेहनत के साथ हैं कि अज़ादारों के लिए बेहतरीन इंतजामात हो सके और शहर के अमन को भी महफूज रखा जाए। इजलास में मुहर्रम की ड्यूटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DPO मलिक तारिक महबूब का कहना था कि तमाम जवान और खवातीन पुलिस एहलकार पुरअज़म हैं। उनका मजीद कहना था कि इंतजामिया और पुलिस की मुश्तरका कोशिशों से मुहर्रम प्लान कामयाब होगा। आज हमने जो इंचार्ज ड्यूटी हैं उनको और उनके SDPO और उनके SHOs को आज बुलाया है, और सिर्फ ये फाइनल ब्रीफिंग देने के लिए कि जो ऑन पॉइंट ड्यूटी है या जो जुलूस पे ड्यूटी है उनकी एसोसिएशन और बर वक्त ड्यूटी पे पहुंचना और ड्यूटी को अच्छे अंदाज में एग्जीक्यूट करने के बारे में हमने फोकस किया है। आपने देखा है जो जज्बा था फीमेल का और हमारी मेल अफसरान का। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन है ये चाहे जुलूस है, मजलिस है, इस जंग के अवाम के लिए अपने आप को सर्व करेंगे। DPO मलिक तारिक महबूब ने तमाम अफसरान और एहलकारों को ड्यूटी पर बर वक्त पहुँचकर रिपोर्ट करने की हिदायत की। निगरानी के लिए खसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। मुहर्रम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। फैसलाबाद रीजन के 500 पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल रिजर्व फोर्स कायम कर दी गई। मुहर्रम में पंजाब भर से पेट्रोलिंग पुलिस के 3400 एहलकारों पर मुश्तमिल रिजर्व फोर्स कायम की गई है। पेट्रोलिंग रिजर्व रीजनल पेट्रोलिंग ऑफिसर के हमरा मुतालिका RPO को रिपोर्ट करेगी। AIG ऑपरेशंस ने पेट्रोलिंग पुलिस की रिजर्व फोर्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रीजनल पेट्रोलिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने 500 एहलकारों पर मुश्तमिल फोर्स की लिस्ट IG दफ्तर भिजवा दी।
डोबा टेक्सिंग में मुहर्रम के मौके पर नजर न्याज की तकसीम जारी। पकवान सेंटर्स का कारोबार बढ़ गया। मजालिस के आखिर में न्याज के तौर पर बहुत सारी चीजें बांटने की रिवायत है। पकवान सेंटर्स के मालिक कान का कहना है मुहर्रम में कारोबार में इजाफा हो जाता है, लेकिन हमने मुहर्रम में पकवाई की मजदूरी 1000 रुपए कम कर दी है। कारीगर का कहना था हम सारा साल कमाई करते हैं, मुहर्रम में मुनाफा नहीं लेते ताकि लोग बढ़ चढ़ कर लंगर बांट सके। लोग न्याज बांटने के लिए खीर, हलीम और मीठे चावल पकवाते हैं। मुहर्रम अल हराम में नजर न्याज का सिलसिला जारी। जंग में भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद मिट्टी के बर्तनों में न्याज तकसीम करते हैं। उम्मत मुस्लिमा की बड़ी तादाद शुहदाए करबला की याद में नजर न्याज करती है। अकीदतमंद फल और दीगर अशिया के साथ मिट्टी के बर्तनों में दूध और खीर भी तकसीम करते हैं। इस वजह से मिट्टी के बर्तन बनाने वालों का कारोबार भी चलता है। कारीगर बहुत मेहनत और लगन के साथ ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला। जंग के पैफ पार्टनर स्कूल्स मालिकान को इमारत की तोसी और दीगर इंतजामात के लिए बिला सूद कर्जा फराहम किए जाएंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने जंग समेत पंजाब भर के पैफ पार्टनर स्कूल्स के लिए वेलफेयर फंड्स का इजरा करने की हिदायत कर दी। वेलफेयर फंड में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की मुआवनत हासिल होगी। पैफ पार्टनर स्कूल्स के माहाना फंड्स में से 1% वेलफेयर फंड के हिस्सा के तौर पर लिया जाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मुताबिक मुआहिदा खत्म होने की सूरत में पैफ पार्टनर स्कूल्स की तरफ से जमा कराई गई तमाम रकम बमा मुनाफा वापस कर दी जाएगी। विमेन यूनिवर्सिटी में पंजाब वॉलीबॉल लीग इख्तिताम पजीर। तकरीब का इनेकाद फैसलाबाद रीजन, लाहौर और मुल्तान के खिलाड़ियों समेत टीचर और तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तलबा में मेडल के साथ नकद इनाम भी तकसीम किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मरियम रजा की इस रिपोर्ट में। वुमेन यूनिवर्सिटी में पंजाब वॉलीबॉल लीग की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तकरीब में फैसलाबाद रीजन, लाहौर और मुल्तान के खिलाड़ियों, प्रोफेसर, HODs, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में मेडल के साथ नगद इनाम भी तकसीम किया गया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के साबिक MP राना शुहेब अदरीस और जिस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िले हुमा नाजली ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म साहब के विजन के मुताबिक ये जो यूथ के स्पोर्ट्स के जो इवेंट थे, ये ट्रायल थे और मुकाबले थे, ये बड़े आसान तरीके से अंजाम पाए और फैसलाबाद में ने हर स्पोर्ट में, हर खेल में नुमाया पोजीशन हासिल की और हमेशा की तरह फैसलाबाद में अपना जो नुमाया किरदार था वो अदा किया। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िले हुमा नाजली का कहना था कि यूथ के लिए खेलों का एहतमाम करना बहुत जरूरी है ताकि दुनिया में नुमाया किरदार अदा करे। फैसलाबाद की मिट्टी ने हमेशा पाकिस्तान को बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। फैसलाबाद की टीम ने बॉयज में भी, गर्ल्स में भी बहुत ज्यादा जो है वो फर्स्ट, सेकेंड और पोजीशन जो है वो ली हैं। तो फैसलाबाद इज अ वेरी फर्टाइल रीजन और इसमें अगर आप हिस्ट्री को भी देखें तो क्रिकेट हो, हॉकी हो, हमारे जो फैसलाबाद से रीजन से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर्स हैं वो हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं। तलबा और तालिबात को तलीम तरबियत के साथ खेलों से भी आशना करवाना जरूरी है। खिलाड़ियों का कहना था हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, इंशाल्लाह हमारे खिलाड़ी आने वाले वक्त में बेहतर कारकर्दगी पेश करेंगे। हमारी हार्ड लक थी कि हम लोगों ने फाइनल मैच लूज किया, लेकिन बेसिकली ये एक छोटी सी लीग थी, आगे इसका फाइनल होने वाला है इस्लामाबाद में, तो हम उसके लिए थोड़ा काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड होकर आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि एक टीम बन रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होगा। थैंक यू सो मच शहबाज शरीफ का, जिन्होंने ये टैलेंट हंट की लीग निकाली, जिससे एक यूथ टैलेंट बाहर निकला। पहली पोजीशन गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने हासिल की, जबकि दूसरी लाहौर रीजन और तीसरी पोजीशन मुल्तान रीजन ने हासिल की और जीतने वाली टीम में मेडल समेत नकद भी तकसीम की गई। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, 41 फैसलाबाद। तोहफे में मिले जूतों पर कीमत से ज्यादा टैक्स। इंटरनेशनल एथलीट खिलाड़ी साहिबा इसरा को UK से जूते मंगवाने महंगे पड़ गए। खिलाड़ी ने स्पाइक शूज 55,000 के मंगवाए, कस्टम में 67,000 टैक्स लगा दिया। कस्टम टैक्स ज्यादा लगने पर कौमी खिलाड़ी परेशान हो गई। साहिबा इसरा का कहना था इतनी हमारी सैलरी नहीं जितना टैक्स लगा दिया गया, जेब खर्च से पैसे बचाकर जूते मंगवाए, अब इतना टैक्स कहां से दूं? गवर्नमेंट खिलाड़ियों पर रहम खाए और मेरे जूते मुझे दिलवाए। फैसलाबाद कलीम शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑल पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद
چیئرمین پاکستان سوکر فٹبال فیڈریشن سردار رفیق نے چیمپئن شپ کی صدارت کی۔ اس موقع پر پاکستان ساکر فٹسل فیڈریشن صدر حاجی طارق محمود، جنرل پاکستان ساکر فٹسل فیڈریشن سیکرٹری مبشر سنجرانی، چیئرمین فٹسل ایسوسی ایشن نسیم احمد، فیصل آباد ڈویژن صدر شیخ غضنفر، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ساجدہ لطیف، محمد عاطف نومی ملک، ایسوسیٹ سیکرٹری پنجاب ریسلنگ ایسوسی ایشن بابا اسپورٹس حاجی محمد رفیق بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔